Good morning, student. We study in last day about the velocity. We know about the velocity vector v equal to vx I cap plus vy j cap. Okay. Where Vx equal to dx by dt and Vy equal to dy by dt. Okay. So magnitude of velocity, magnitude of vector v equal to root vx square plus vy square, vx square plus vy square. अब x जो कि डायरेक्शन हम फाइंड कर लें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v if velocity vector v made an angle theta from the axis x, so tan theta equal to vy upon vx, This is also imply that theta equal to tan inverse vy upon vx. ओके. ये देखिए ऐसे जो कि आपके वेलोसिटी वेक्टर एंगल फॉर्म करता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. अगर कोई जो है कि आपकी वेलोसिटी का ग्राफ हो जाए ऐसे, आप किसी टाइम जो है कि वेलोसिटी के लिए जो है कि ड्रा करेंगे, तो ये आपकी यहाँ पर देखिए वेलोसिटी वेक्टर ये आ गया, वेक्टर v, इससे इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एंगल आपकी थीटा हो जाएगी. ठीक. और ये वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हो जाएगी vx I कैप और y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हो जाएगी vy j कैप. ओके. और ये एंगल एक्स एक्सिस से थीटा फॉर्म करेगा. इसके बाद आएगा आपका एक्सेलरेशन.
acceleration. Average acceleration of an object of an object vector A equal to delta vector V upon time interval delta t. Okay, we can written as delta vector V. It is also written as Vx I cap plus Vy j cap. ये वेक्टर v के प्लेस पर ये लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा t. अब इनको डिफरेंट टर्म में रिटर्न कर सकते हैं. जैसे टू टर्म्स है, पॉजिटिव साइन इसको टू टर्म्स में सेपरेट करता है. देयरफॉर वी कैन रिटर्न एज डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप. ठीक, अब इसमें जो है कि आप ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम along x axis. It is also called acceleration of the object along x axis. Therefore, it is called ax I cap, and this is rate of velocity of change of velocity of the object along y axis. It is called acceleration of the object along y axis. Therefore, this is called ay j cap. Therefore, vector A equal to in this. Okay. यह एवरेज वेक्टर है. We find the instantaneous acceleration if time interval is very small. Okay, if time interval is very small, that is delta t tend to 0, then instantaneous acceleration acceleration A is equal to vector A is equal to limit of delta t tend to 0 vector delta v upon delta t. Putting the value of delta v, okay, therefore putting the value of delta v is equal to
लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा v इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप अपॉन डेल्टा t. Therefore we can separate in two terms. लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 vx अपॉन डेल्टा t I कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 vy अपॉन डेल्टा t. Okay. It is also called dvx upon dt I कैप प्लस dvy upon dt j कैप. Okay. It is also called acceleration of the object along the x-axis, and this is also called acceleration of the object along y-axis. Okay. वेक्टर A इक्वल टू AXI कैप प्लस AYJ कैप. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.4. NCERT example 4.4. NCERT example 4.4. Okay. The example 4.4. The position of a particle is given by. Okay. Position of a particle is given by vector r equal to 3.0 t I cap 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap 2.0 t square j cap plus 5.0 k cap 5.0 k cap. Okay, where t is in second and the coefficient have the proper unit for vector r to be in meter. Find velocity v at time t and acceleration t and acceleration a at time t of the particle. B part, find the magnitude and direction of velocity at time t at time t equal to 1 second. यानी 1 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो फर्स्ट में वेलोसिटी एट टाइम t फाइंड कर लीजिए. ये हो जाएगा वेक्टर dr by dt
और वेक्टर डी आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बाई डी टी वेक्टर आर 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। ओके, अब इसको जो है कि आप डिफरेंट पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इट इज आल्सो रिटन एज डी अपॉन डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी अपॉन डी टी 5.0 के कैप। ओके, देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं हमें। अब ये तो कांस्टेंट है, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो 3 को बाहर कर लीजिए। 3.0 डी टी अपॉन डी टी आई कैप प्लस 2 डी टी स्क्वायर बाई डी टी जे कैप प्लस 5। अब यहाँ t का कोई टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं t का पावर 0। वी कैन रिटेन एज t टू पावर 0 d अपॉन डी टी t टू पावर 0 k का। ओके, तो या इनका कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन आप करोगे 0 हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो 5.0 के का। अब देखिए ये 3.0 इंटू टी टू पावर 1 है, आप इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो इनका जो कि आ जाएगा 0। जो आप एक फार्मूला पढ़े हो कि d अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर n इक्वल टू n एक्स n टू पावर n माइनस 1, जो पावर है इंटू एक्स इन का पावर n माइनस 1। तो आपका यहाँ का t का पावर 1 है और वो 1 यहाँ लाएंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और t टू पावर ये 0 हो जाएंगे। आई कैप प्लस 2 इंटू पावर की मल्टीप्लाई जैसे n है, फिर t टू पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अब प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपने पढ़ा d अपॉन डी टी से इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 टी, ये वेलोसिटी आ गई। अब देखिए ये जे कैप होगा, जे कैप। ओके, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। अब इसके बाद आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी वी बाई डी टी। अब इनको t के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इनका जो कि आपका हो जाएगा d अपॉन डी टी 3 आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी 4 टी जे कैप। ओके, सॉलिड्स ये कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये t का 1 हो जाएगा, केवल बचेंगे 4 जे कैप, यानी वेक्टर a इक्वल टू 4 जे, ठीक। यानी एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, यानी एक्सेलरेशन
एक्सलरेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along y axis, along y axis. ओके, नेक्स्ट है आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ VT एंड. ठीक, तो ये तो ए पार्ट था आपका क्वेश्चन का. अब बी पार्ट में इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं. B part, magnitude of vector v, यानी v इक्वल टू रो. देखिए x एक्सिस का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपकी आ गई थी वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4tj कैप, 3i कैप प्लस 4tj कैप. ठीक, तो आपको ये फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड. एट t इक्वल टू 1 v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप. तो देखिए i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट j 4 का स्क्वायर. ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 9 और प्लस 16 रूट 25 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी आपको है. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx. देखिए y का कोफिशिएंट 4 था, y एक्सिस के लॉन्ग का कोफिशिएंट 4, tan इनवर्स 4/3, x का कोफिशिएंट x एक्सिस के लॉन्ग कोफिशिएंट 3. अब 4/3 ये आ जाएंगे आपके टेंजेंट टेबल से देखने पर आ जाएंगे 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 डिग्री. ठीक, विथ किस एक्सिस से? विथ एक्स एक्सिस. ओके, थैंक्स.